some mineral or some ions have positive charge, some ions have negative charge, and that's why it is a selective, okay, and that's why it wants to channelize with a proper way, and pump, that is active pump, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाला जो पंप है वो उसको चैनलाइज करता है प्रॉपर वे में. सो दिस थिंग्स आल्सो डिस्कस इन द लास्ट सेशन. ओके, नेक्स्ट we discuss about the sink element. Okay, then what is mean by sink element? After absorption of mineral from the soil, it want to store inside the plant. Okay, and that's why it is a sink element or sink minerals. Okay, and it store in different part of plant like growing region, for example apical region, uh, lateral meristematic region, young leaves, developing fruits, flower, and seed. After that, storage organs like a root. In some plant, root are the storage organ. So these are the storage places where we store or sink the different type of mineral. Would also sink in that mineral. After that, we discuss about translocation of mineral ion, and translocation happen with the help of xylem, phloem, both. ये भी चीजें हमने देखा था. कौन कौन से फॉर्म में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है वो भी देखा था. क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन आर थिंग are the things which transported in form of inorganic and organic, दोनों भी फेज में हो गए. For example, in case of nitrogen, nitrogen transport in form of amino acid, and amino acid is the organic form of nitrogen. ठीक है, ये भी हमने देखा है. Only one thing do not transport from one place to another, that is the calcium. Why calcium not transported? Because calcium is the skeletal part of leaf, and if leaf get fall, leaf अगर गिर जाता है, पत्ता गिर जाता है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बिकॉज वो स्केलेटल फॉर्म में रहेगा. ठीक है, मतलब जो बॉडी रहेगी पत्ते की वो उससे बना हुआ रहेगा. चलिए, सो नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डिस्कस इन दिस सेशन, दैट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट. मतलब अब तक हमने जो चीज देखा है ना, दैट इज अ जाइलम ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन जाइलम ट्रांसपोर्ट. ठीक है, in this session we going to discuss about phloem transport, how to phloem transport material. Okay, next thing is the mechanism behind transportation inside the phloem. ठीक है, and there have one hypothesis, that is a pressure flow hypothesis or flow pressure hypothesis we can say. ठीक है, next thing is okay, the pressure flow hypothesis. Okay, or it also known as a mass flow hypothesis, and it also known as a flow from source to sink. Then what is the mean by source? What is the source of food in a plant? बताइए. What is the source of food in a plant? Please message in chat box, guys. कौन कौन मैसेज करेगा मुझे बताइए. आपको क्या लगता है सोर्स क्या है फूड का? ठीक है, ओके. सोर्स, व्हाट इज मीनिंग बाय सोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर पता है हमें तो हम सारी चीजें आराम से बता सकते हैं. सो चलिए, किसी ने मुझे न्यूट्रेंट भेजा है, बट न्यूट्रेंट इज अ नॉट अ आंसर. ओके, सो आई एम टॉक अबाउट द सोर्स. soil is the source. I am talk about the source of food in plant. Is plant food कहां से बनाता है? अब ध्यान में आएगा. अब आई एम गिविंग सम हिंट टू यू, how plant made their food or how plant. Okay,
water and light. Place कौन सा है? What is the place where food get developed inside the plant? Okay, correct, correct. अब ठीक है, वेरोनिका अनन्या ठीक है. So source of food is the leaf, or you can say leaves. Okay, समझ में आ रहा है कि नहीं? And sink part is the storage part. Okay, then sink part included fruits, after that flower, after that some we can say root of fruit of flower. Okay, this thing कुछ केसेस में बार्क नहीं, बार्क तो नहीं हो सकता, बट ये तीन चीजें ध्यान में रखना. दिस इज द सिंक पार्ट. सिंक मीन्स स्टोरेज. हाँ हाँ, एक चीज है इसमें स्टोरेज में, न्यू डेवलपिंग पार्ट. सो न्यू पार्ट आई एम राइट हियर. सो देयर आर द सिंक पार्ट. ठीक है, तो ये सारी चीजें ना सिंक पार्ट है. सोर्स पार्ट ऑफ फूड इज द लीफ. दैट मीन्स फूड डेवलप इनसाइड द लीफ. Then my next question is, in which form food develop inside the leaf? In which form food develop inside the leaf? कौन से फॉर्म में लीफ के अंदर फूड बनता है? चलिए, लीफ के अंदर कैसा फूड बनता है? जैसे हमारे किचन में बनता है वैसे बनता है क्या? गुलाब जामुन, बर्फी, चपाती, रोटी, ब्रेड, बटर, मसाला, बिरयानी, ऐसा बनता है क्या फूड? ओके, ठीक है. तो प्लांट ये सारी चीजें बनाता नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव किचन, दैट्स व्हाई. हाँ, सो द फूड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, ये सभी को पता है हमें, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है. एंड ग्लूकोज नॉट अ स्टार्च, वेरोनिका. एक्चुअली स्टार्च इज द स्टोरेज सिस्टम. Okay, so first of all, food develop in the form of glucose. Okay, and when it want to transport, it converted into sucrose. It converted into sucrose. Why sucrose? My next question. Why glucose not transported from the phloem? Okay, or why sucrose is a transportable form and starch is the storage form? Storage form of carbohydrate. I am right here, the starch. So हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज इज द फूड made by plant. Next, sucrose is the transportable form. ठीक है, starch is the storage form. Okay, then my question is, why glucose doesn't transport? Why glucose converted to sucrose for the transport? And answer is glucose reducing sugar. Okay, is non-reducing sugar. समझ में आ गया? That's why sucrose is or less reactive
because phloem not only transported the carbohydrate, it transported amino acid, it transported hormones, and it transported other chemical also. If we use glucose as a transporter carbohydrate, then it may react to other systems or other substances, like it may react to other hormones, it may react to other we can say amino acid, and that's why sucrose is a non-reducing sugar. It is a form of non-reducing sugar, and that's why sucrose is the form of it used as a transport form. मतलब सुक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, ग्लूकोज को यूज नहीं किया जाता. ग्लूकोज को क्यों नहीं यूज किया जाएगा? बिकॉज इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड रिड्यूसिंग शुगर इज द रिएक्टिव. ओके, ये एक रिएक्शन कुछ अलग चीजों को ये फॉर्म कर सकता है. हो गया क्लियर? अब क्या क्या हमने यहाँ पर देखा है? व्हाट वी लर्न? First of all, source. Okay, so source is the leaf where food get developed. Next is the sink part. So sink part contain root, fruit, flower. New part, okay, where this food get stored. Next thing is the glucose. Glucose is a food made by plant. Sucrose is the transport form of carbohydrate. That means we want to transport in the form of sucrose. ठीक है. And starch is the storage. हो गया clear इतना चीज? Why glucose doesn't use for the transport? Because glucose is the reducing sugar. Next, sucrose is non-reducing sugar. That's why it used in the transportation. हो गया clear? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा. दिस इज द सोर्स. ओके, दैट मीन्स दिस इज अ लीफ. ओके, लीफ सेल. दिस इज अ कंपेनियन सेल. ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, दिस इज अ फ्लोएम. This is the xylem. Okay, so you can see here source cell adjacent to companion, companion adjacent to the phloem. Okay, and phloem adjacent or parallel with the xylem. ठीक है, ये प्रोसेस हो गया. उसी तरीके से here you can see, here is the sink cell. Okay, so sink cell either it is a root cell or it is a fruit cell or it is a flower cell, like that. This is companion cell again, and this is the phloem. Okay, क्लियर हो गया चीज? दिस इज द xylem थी. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट थिंग वी वांट टू डिस्कस अबाउट mechanism behind the mass flow. Mechanism behind the mass flow, or we can say mechanism behind the phloem sap. Okay, phloem sap in the sense, phloem sap का मतलब क्या होता है? A contain inside the phloem, that is a phloem sap. So I am write here some name or contain of phloem sap. Okay, and in the phloem sap you can write here, हम क्या क्या लिख सकते हैं phloem sap में? First of all, amino acid, hormones, उसके बाद सुक्रोज, ठीक है, एंड अदर केमिकल्स, अदर केमिकल्स. ठीक है, उसमें बाकी चीजें आ जाएगी, कवर हो जाए. सो हाउ टू दिस फ्लोएम सैप ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर फॉर्म. ओके, बिफोर दिस you already know about phloem transport. Phloem transport is the bidirectional or unidirectional? Bidirectional. Why it called bidirectional? 1 minute. It also known as multidirectional. Okay, ये bidirectional में नीचे ही लिखता हूँ, थोड़ा यहाँ पर नहीं बैठ रहा है. Please answer me in chat box why phloem flow, or we can say phloem is the bidirectional. फ्लोएम का फ्लो बाय डायरेक्शनल क्यों है? कोई बता पाएगा?
Is any reason behind it? ठीक है वेरोनिका, नो इशू, but clear your answer. Why bidirectional flow is important in case of phloem? ठीक है, उसका रीजन क्या है? टू डायरेक्शन होता है ये तो हमें पता ही चलता है, नो इश्यू, ठीक है। झाइलम का फ्लो जो रहता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, ओके। आकाश, एक्चुअली टर्जर प्रेशर हमारा झाइलम भी बना सकता है, बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन फ्लो में टर्जर प्रेशर बनता है, एंड दैट्स व्हाई प्लांट मेंटेन देयर शेप। ये तो हमने पढ़ा है कि नहीं? देखिए सिंपल सी चीज है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ड्यूरिंग द नॉर्मल कंडीशन, flow of, I am adding some page here. For example, this is your plant, okay. This is plant, ठीक है, ये हमारा plant है. This is the roots, okay. So in normal condition, food develop in the leaf, okay, and this food transported to the root. This food transported to the fruit, okay, like that. But during abnormal condition, at that stage, this food material transported from the root, fruit to the other part, like to leaf, okay. During the season, during the spring season, then what happen with plant in the spring season? Spring season में क्या होता है? New flowers are developed. न्यू फ्लावर का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लांट एंड हियर सम फ्लावर गेट डेवलप इन द स्प्रिंग सीजन. एट दैट स्टेज, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, वी वांट अ फूड, वी वांट अ एनर्जी, वी वांट अ कार्बोहाइड्रेट. एट दैट टाइम, in normal condition, we send the food toward the root, okay, clear, okay. But during a specific condition, this root want to send food to the other part of body, other part of plant, like toward the flower. मतलब हमारा सिस्टम क्या है प्लांट का, कि हम नॉर्मल कंडीशन में फूड लीफ के अंदर बनाएंगे, वो पूरे हमारे रूट, फ्रूट एंड अदर पार्ट लाइक अदर थिंग्स जो है उसके तरफ भेज देंगे, नो इश्यू. समझिए कि हमने रूट के तरफ फूड को भेज दिया, सो रूट स्टोर द कंप्लीट फूड. बट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन कम, ओके, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन कम, एट दैट स्टेज वी वांट टू फूड रिक्वायरमेंट इन फ्लावर. मतलब फूड की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? फ्लावर में है, बराबर कि नहीं? So at that stage, this root sent their food, that is store food, again to the flower. ये कहाँ तक भेजेंगे इसको, store food को? फ्लावर तक. So here you can see this flow is the done by two direction. That is पहला डायरेक्शन कौन सा रहेगा? From leaf to root, okay, for example. And next direction is from root to the flower, and that's why it is known as the bidirectional. But in case of xylem के केस में क्या देखते हैं? Flow is unidirectional. फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है. दैट मीन्स वाटर कैन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट, ये हमारा रूट है, ठीक है, और रूट से कहां तक वो फ्लोट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? लीफ तक ओनली. वाटर वापिस नहीं आता, ऐसा वापिस नहीं आएगा, ठीक है. वापिस नहीं आता इन द सेंस झाइलम से वापिस नहीं आएगा. आइदर इट कम अदर चैनल्स, वो दूसरे चैनल से आ सकता है, लाइक वो फ्लोएम से आ सकता है, बट झाइलम से वो
वापस नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाई the flow the transportation inside a xylem is the unidirectional, but in case of phloem it is a bidirectional. क्लियर हो गया? क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस देखते हैं मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, सोर्स सेल, ओके, दिस इज द सोर्स सेल डेवलप द सुक्रोज, ओके, or we can say source cell develop glucose, and glucose converted into transportable form, that is a sucrose, okay. After that this sucrose uh, going into the companion cell, ये sucrose यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये कहां पर जाएगा? companion cell में, okay. Companion cell, for example, this is the companion cell, and companion cell contain some pumps, okay. So you already know where we pump use, pump हम क्यों यूज करते हैं, why we pump use, okay. So here I am write the word pump, that means it is the कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा ये? एक्टिव और पैसिव? it is the active transport. So remember one thing, क्या ध्यान में क्या रखना यहां पर? companion cell sent the sugar molecule inside the phloem with the help of active transportation, with the help of some pumps, okay. And pumps are highly selective. You already know about active and passive transport. इसके बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया था, आपको लेसन स्टार्ट किया था तब, ठीक है। तो ये हाईली सिलेक्टिव रहेगा, ठीक है। सो हियर inside the phloem, this companion cell added the sugar molecule with the help of active transport or with the process of active transport. अब sugar molecule यहाँ पर चला गया, that means inside the phloem, so I am right here, inside the phloem, phloem में क्या हुआ? Sugar get increases, okay, and you already know sugar is one of solute, and that's why water पोटेंशियल डिक्रीजेस। समझ में आ गया कि नहीं? वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इजी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लास, ग्लास कंटेन वाटर, ग्लास के अंदर पानी है, यू एडेड द शुगर, इसके अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया, ओके, दिस इज द शुगर। शुगर ऐड करने से क्या होगा? वाटर इट लॉसेस द वाटर पोटेंशियल, उसका वाटर पोटेंशियल लॉस होगा, बराबर है। सो इन दिस फ्लोएम हाइपरटोनिक कंडीशन फॉर्म, यहां पर कौन सा कंडीशन फॉर्म होगा? हाइपरटोनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, वाटर का पोटेंशियल डाउन हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन फॉर्म हो गया। दैट्स व्हाई हियर यू कैन सी द xylem which parallelly run with the phloem, फ्लोएम के साथ पैरेलली चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ये देखिए, ठीक है, दिस इज द xylem, and that's why the water inside the xylem come in contact with phloem. समझ में आ रहा है? क्यों? Because here water potential get down, water potential क्या हो गया यहाँ का? phloem का डाउन हो गया, एंड उसके वजह से ये जो पानी है जो xylem से चल रहा था वो किस में आ गया? phloem के अंदर एंटर हो गया, ओके। किसी को डाउट है यहां तक? ओके, चलिए अब क्या होता है आगे देखिए। सो हियर प्रेशर गेट डेवलप, दैट मींस इसमें वाटर आ गया, इसमें सोल्यूट भी है, सो यहाँ पर एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड हियर प्रेशर गेट डेवलप, ठीक है। सो ऑब्वियस सी चीज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? वाटर ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंटिन्यू सेल्स ऑफ फ्लोएम, ये कंटिन्यू सेल्स है फ्लोएम। सो आई एम एडेड द सॉल्यूशन हियर, मैंने दिया पूरा इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर ये ओपन है, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉटल कंटेन वाटर, ये बॉटल के अंदर पानी है, ठीक, पर जाएगा, यहाँ पे जमा हो गया क्या? फिर से नहीं,
अगर मैं ऊपर से पानी इसमें फिर से ऐड करूंगा, सो वाटर ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ बॉटल, बॉटल का ये स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा. लाइक दैट you can relate this example to this system. So this phloem that contain sugar with water, and this phloem filled completely. After that, and again this companion cell added the continuously sugar इसमें add कर रहा है, again this xylem added the water in this part. Okay, तो ये सारी चीजें कहां पर जाएंगी? ओके ये सारी चीजें जाएंगी एम्प्टी सेल में, एम्प्टी फ्लोएम पार्ट में. ओके एंड दिस प्रोसेस गोइंग टू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, एंड इस तरीके से ड्यू टू प्रेशर फ्लो, ओके दिस फूड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड और दिस सुक्रोज मटेरियल ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द सिंक सेल. ये कहां तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सिंक सेल के तरफ. okay again here one of companion cell. okay companion cell के अंदर again it added by the active transport. ठीक है, इसमें ये actively इसमें add किया गया, and after that you can see inside the sink cell sucrose get stored, but sucrose not stored in the form of sucrose, it converted into starch. ठीक है, एंड स्टार्च के फॉर्म में वो वहां पर क्या रहेगा? कंजर्व होके रहेगा. कब तक रहेगा? जब तक प्लांट में दूसरे साइड में और अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, इफ एनी वर्क फॉर एनर्जी, अगर एनर्जी का कुछ काम वहां पर है, देन इट ट्रांसपोर्टेड टू दी अदर पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, अब यहां पर एक बात देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, सर दिस मिक्सचर is water contain the water and sucrose. okay but here only sucrose added in companion cell. ऐसा क्यों? because we already know here is the pump. okay and pump have a highly specific. ठीक है, पंप कैसे है? हाईली स्पेसिफिक है, एंड दैट्स व्हाई इट्स स्पेसिफिक फॉर शुगर ओनली, नॉट वाटर. मतलब ये यहाँ पर जो पंप रहेंगे ना, ये किसके लिए स्पेसिफिक है? सिर्फ और सिर्फ हमारे शुगर और सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए. ठीक है, वाटर के लिए नहीं. एंड दैट्स व्हाई वाटर रिटर्न टू दी जाइलम. वाटर फिर से कहा किससे रिटर्न किया जाएगा? जाइलम को रिटर्न किया जाएगा. एंड दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस. दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अ मास फ्लो और प्रेशर फ्लो. ठीक है, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है. अंडरस्टूड? किसी को डाउट है? एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते फटाफट. सबसे पहले हमने क्या देखा है? सोर्स एंड सिंक cells. So source present in leaf, sink are the root, fruit, flower, new part. So sink is the storage part और storage sector जहां पर हम चीजों को स्टोर करेंगे. That means food made in the leaf and stored in the root, fruit, flower and other things. Here is the glucose. okay so in case of food, plant made the food in form of glucose. okay next thing is the sucrose. Then why sucrose? Because sucrose is easy to transport. why? Because the sucrose is the non-reducing sugar, glucose is the reducing sugar. Next thing is the starch. After transportation it converted into the starch. इफ यू वांट टू स्टोर इट, मतलब अगर प्लांट को इसको स्टोर करना है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टार्च में कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलिए, उसके बाद हमने देखा था मैकेनिज्म स्टार्ट किया था, उसमें हमने फ्लोएम सैप. सो इन केस ऑफ फ्लोएम देयर आर अमीनो एसिड, हार्मोन, सुक्रोज एंड अदर केमिकल आर प्रेजेंट. ओके सो फ्लोएम आर द bidirectional flow. Why bidirectional? Because in normal condition food made inside the leaf, okay and after that it go toward the root and storage system. But during a specific season, in a specific season or during any specific condition, वो उस समय में क्या होता है? This storage part provided the food to the other part of plant body.
समझ में आ गया? एंड दैट्स व्हाई इट इज अ बाय डायरेक्शन. नेक्स्ट थिंग इज द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में हमने क्या देखा है? सोर्स सेल, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम. ठीक है. सोर्स सेल से शुगर मॉलिक्यूल आएंगे इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज, and after that companion cell transfer this sugar molecule in the phloem. From the xylem water get added, okay, and after the due to pressure this all mixture go toward the empty cell. empty cell से ये जाएगा सिंक में. ओके, ठीक है. तो ये है मैकेनिज्म हमारा. So here is the one of experiment, and experiment show how phloem work. मतलब फ्लोएम कैसे काम करता है ये हमें दिखाया गया है. यहाँ पर क्या किया गया है सिंपली आप एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो. यू कैन सी हियर. सो हियर वी गेट वन ऑफ प्लांट, ओके, एंड प्लांट को बीच में से हमने काट दिया. काट दिया, कौन सा पार्ट काट दिया? वी इंटैक्टेड xylem, okay, we not cut the xylem, okay, but we cut phloem part. phloem part को हमने कट कर दिया. and after few weeks after few weeks we observe the plant, and observation में हमें क्या दिखता है? there have some solid tissues present here. Why this solid? Because of here food get developed in leaves of plant, okay, and उस फूड को कहा गया नीचे भेजा जाएगा, रूट के तरफ भेजा जाएगा. एंड ये फूड को जाने के लिए तो जगह नहीं, बिकॉज वी कट द फ्लोएम्स. हमने यहाँ से क्या कट कर दिया? फ्लोएम कट कर दिया. दैट्स व्हाई दिस टिश्यू गेट सॉलो. दैट मीन्स फूड स्टोर इन दिस सोलोन पार्ट और सोलोन टिश्यू. एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट. इसको हम क्या कहते हैं? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कहेंगे. और इट आल्सो नोन एज अ रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. So you can see the theory, that is carefully remove ring of bark from the tree trunk. After few weeks, the portion of bark above the ring and stem becomes hollow. This is due to absence of downward movement of food. ठीक है? This show that phloem is the tissue responsible for transportation of food, and that transport takes place in one direction toward the root. ठीक है? चलिए, ये वन डायरेक्शन में हुआ है यहाँ का. बट अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यूज जाते हैं तब ये बाय डायरेक्शन होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन, ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. Translocation of carbohydrate nutrient usually occur in the form of glucose, maltose, starch, sucrose. I am launching the poll again. Poll for you. Please answer it. Correct, Veronica. Correct, Harsh. Okay. Only 10 seconds are left, guys. Please answer fast. Correct, Akash. So I am ending the poll. And this is your result. Maximum people choose an option D. Obviously, option D is the correct option. ठीक है. So ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो मैंने अब रिवीजन भी करवाया है आपको, फिर भी भूल गए. ठीक है. सो ग्लूकोज इज द फॉर्म जो फूड बनाता है या बनता है जो फॉर्म में. maltose is the sugar which present in different like crops.
ठीक है, जैसे माल्ट शुगर जो है वो अलग अलग क्रॉप के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर एंड सुक्रोज इज द ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, चलिए, coming to the next question. Next question is bidirectional translocation of mineral takes place in xylem, phloem, parenchyma, cambium. Please answer. I'm launching poll again. Okay, correct Akash, correct Sujal, correct Veronica, correct Harsh, correct Ananya, correct Anita, okay, चलिए। So I'm ending the poll now. देखते हैं। Maximum people chosen option B. Obviously, option B is the correct option. This is a question था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बाय डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल टेक्स प्लेस इन द फ्लोएम ओनली। ओके, इन केस ऑफ xylem it is a unidirectional. Okay, okay, so this is all about today's session, today's lesson. Okay, we going to the next and start the 12th standard part. My name is Yudhishthir Suryavanshi, ये तो पता ही होगा, and my educational qualification is MSc Microbiology, Diploma in Education, Bachelor in Education, Diploma in Forensic Science. Okay, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next thing is we want to discuss about reproduction in organism. Before going to reproduction in organism, we go through some topics. ठीक है, so I'm come in 30 सेकंड, ठीक है। पहले टॉपिक को देख लो आप अच्छी तरीके से। Okay, guys, this is the complete syllabus for botany. Okay, actually, this is a combining syllabus of 11 and 12 both. मतलब
भी टॉपिक है इसमें, मैं यहाँ पर 11 12 प्लस 12 तो दोनों भी लिखता हूँ, ठीक है। सो हियर यस Harsh. So here you can see the different topics for botany, that is plant diversity, plant anatomy, plant morphology, cell biology, cell division, plant physiology, plant reproduction, genetics and biotechnology, biology for human welfare. Okay, and here you can see the average number of questions from the chapter. But this is not a confirm. मतलब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लांट डाइवर्सिटी से 7 ही क्वेश्चन आएंगे, और फ्रॉम द प्लांट एनाटॉमी देयर हैव ओनली 2 क्वेश्चन देयर, बट इट इज अ वन ऑफ वी कैन से अंदाजा जो लगाना होता है ना, दैट इज फोरकास्ट लाइक दैट, ये उस तरीके से, बिकॉज नो एनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा पेपर ले रहा है, दैट इज जो हमारा नेशनल टैलेंट सर्च, क्या कौन सा है, नहीं एनटीएस, एनटीएस है ना, पेपर कौन लेता है, एनटीएस ही लेता है, ठीक है, नहीं एनटीए, एनटीए नेशनल टैलेंट एजेंसी समथिंग, ठीक है, मैं भी भूल गया उसका नाम, हाँ एनटीए। सो एनटीए का का ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, दिस पार्ट इज नॉट कंफर्म, मतलब ये कुछ भी कंफर्म नहीं रहता एक्चुअली, बट अप टू दी लास्ट पेपर इस तरीके से इतना परसेंटेज में प्लस माइनस जो है वो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी डेवलप दिस शीट, मतलब हमने इस शीट को डेवलप किया। फॉर एग्जांपल in case of plant diversity there have 12% syllabus come from the plant diversity, in case of plant anatomy 4% question come from the plant anatomy, in case of plant morphology 7%, in case of cell biology and cell division there have 10%, okay, इसको मैं थोड़ा IMP कर लेता हूँ ये पार्ट, in case of biomolecule 3%, in case of plant physiology 13%, ठीक है, in case of genetic and biology 24% and human welfare 2%, okay, so from this chart this part, that is genetic and biology, is a 12th part, human welfare from the 12th part, okay, तो ये 12 वाला, प्लांट रिप्रोडक्शन ऑल्सो 12th वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना 12 का, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से है। So in case of plant reproduction, it is important from the 12th. Genetics and biotechnology are the very important. समझ में आ रहा है? In plant reproduction, there have two part, sorry, only one part, that is a sexual reproduction in flowering part, and this is a very important part. ठीक है? तो ये चीजें है ना ध्यान में रखना। 12 का ये है, 11 का वो। चलिए आगे बढ़ते। Next thing, this is the syllabus for zoology. Complete 11 plus 12. 11 plus 12 दोनों के लिए भी यही सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस में क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी 10%, 3 क्वेश्चन आएंगे, इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू ओनली 1 क्वेश्चन इज कम, 3% सिलेबस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ओनली 1 क्वेश्चन, दैट इज 2% सिलेबस, इन केस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी okay, in case of human physiology 40% जो है वो आएगा क्वेश्चन। तेजल वैसे भी हम ग्रुप में इसको शेयर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये देखो, ठीक है, लास्ट वाला स्लाइड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ 18%, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट पोर्शन। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ अगर हम बोले तो दिस इज अ 12th पोर्शन, दिस आल्सो 12, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो 12, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आल्सो 12, ये 12th वाला पार्ट है। अब देखो एक मैं चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम दी बुक ऑफ 11th बायोलॉजी देयर हैव
45% syllabus come into the NEET, and from the book of biology of 12, there have 45% syllabus come into the NEET. ये बात ध्यान में रखना हमेशा. And that's why 11th standard is a very important than 12. समझ में आ गया कि नहीं? क्यों? Because उसके कुछ रीजन है. Reason behind why 11th is important. First reason is a basic concepts are come from the 11th standard. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा का पूरा वो 11th में, मतलब अगर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो उसका बेसिक 11th में रहेगा. ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे लेसन 11th में. इफ यू वांट टू गो फॉर मेडिकल देन ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी ब्रांच ऑफ साइंस, कोई भी ब्रांच, एनी ब्रांच इन द सेंस एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, सो यू वांट टू क्रिस्टल क्लियर अबाउट सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी पूरी तरीके से हमें पता चाहिए. सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इफ यू वांट टू गो एग्रीकल्चर साइंस एंड बॉटनी, ठीक है, फॉरेस्ट्री, ऐसी चीजों को आप जानना चाहते हैं, देन प्लांट फिजियोलॉजी वांट टू स्ट्रॉन्ग. अगेन प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ चीजें ऐसी है कि जो ह्यूमन बायोलॉजी के लिए भी काम में आती है. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस बायोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूडेड इन प्लांट फिजियोलॉजी like Krebs cycle and other things like glycolysis, glucogenesis, are these cycles, are these biochemical cycle are important also for human body. मतलब human body in the sense other organism, ठीक है, rather than plants. मतलब plant में तो ये चीज ठीक ही है, no issue, बट उनके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी. एंड दैट्स व्हाई प्लांट फिजियोलॉजी इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, यहाँ का इंपॉर्टेंट इधर चला गया. ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट यहाँ से, कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट वहां से. ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी को भी थोड़ा सा रख देते हैं. सिर्फ 2 ही टॉपिक रह गए जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 3 टॉपिक बायोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर. इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो किया ही है हमने. एनिमल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है हमारा नीट का सिलेबस. ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी परसेंटेज में क्वेश्चन आएंगे, बट माइनस प्लस हो सकता है इसमें. ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है. ओके, so we going to start the reproduction. In case of reproduction अगर हम बात करें, so 12 के बारे में बात करेंगे हम, 11 के बारे में नहीं बोलेंगे फिलहाल. 11 का जब हम हमें 2 टॉपिक क्लियर करना है सबसे पहले रिटेंशन पीरियड में. दैट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी, वैकेशन पीरियड एक्चुअली, नॉट आप रिटेंशन बोलते हो, वैकेशन मुझे पता नहीं. दैट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, ये हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है. और बाकी अगर चीजें आई थिंक फिर सभी सिलेबस हो जाएगा. ये टॉपिक 2 कवर हो जाते हैं, तो 2 यूनिट कवर हो जाते हैं, तो ठीक है. नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वी स्टडी द 4 चैप्टर्स, 4 लेसन. फर्स्ट लेसन is a very easy and very general. It just introduction about the sexuality. Sorry, not a sexuality, sexual reproduction. ठीक है. So it said about the asexual and sexual reproduction and other processes, lifespan, death, senescence, juvenile phase, like that. ये सारा चीजें आएगा पहला लेसन में. In next lesson, next lesson is a very important, that is a sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Next thing is the human reproduction. So in case of human reproduction, there have lot of part come. उसमें बहुत सारा organ system है, reproductive part है, and other things जो है उससे related, ये सारी चीजें human reproduction. In case of reproductive health is not only useful for your examination, it also useful in your life. मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है, और जो सेक्सुअल हेल्थ का जो पॉइंट रहता है, जनरली इसके ऊपर कोई लोग बोलते नहीं. इन इंडिया देयर हैव
लॉट ऑफ टैबू ऑन सेक्सुअल हेल्थ, इसके ऊपर बोला नहीं जाता। सो गवर्नमेंट ने ये चीजें मतलब आपके अंदर एक अवेयरनेस फॉर्म हो, ठीक है, अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, एंड दैट्स व्हाई दिस लेसन एडेड स्पेशली इन योर सिलेबस, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पूरा सिस्टम हमें मिलता है, हाउ वी कंजर्व अवर हेल्थ, दैट इज सेक्सुअल हेल्थ, उसको कैसे कंजर्व करें, एज वेल एज देयर हैव लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड अदर थिंग्स, ये सारा चीजें हमें मिलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सो दिस इज द little bit we can say introduction of human reproduction and reproduction unit, and this is the first unit of our book. Again one thing, नीट के लिए मैं एक चीज आपको अब बात चलिए एग्जाम की है चली है तो मैं एक चीज आपको रिकमेंडेट करूंगा, कम से कम प्लीज रीड एनसीईआरटी book for biology up to 5 times। समझ में आ रहा है? और अभी समय है आपके पास, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। सो एनसीईआरटी कौन सा? एनसीईआरटी ऑफ 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी एंड 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, ये 5 टाइम्स तो पढ़ के होना ही चाहिए हमारा। समझ में आ रहे हैं? Because NCERT is the Bible for NEET examination. From the NCERT word to word क्वेश्चन कॉपी किए जाते हैं, वर्ड टू वर्ड चीजें उठाई जाती है जैसे कि वैसे। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो बायोलॉजी, सो यू कैन गो विथ ट्रूमन्स पब्लिकेशन। ट्रूमन पब्लिकेशन को डिटेल में देख सकते हो आप। ठीक है, अदर देन आवर नोट्स, और हमारे नोट्स में तो कोई इतना क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है, डिटेल नहीं है, डिटेल नोट्स हम बना रहे हैं फिलहाल। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में अगर देखना है तो फिंगर टिप्स सही है। ठीक है, फिंगर टिप्स इज द बेस्ट। ठीक है, फिंगर टिप्स से भी बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, मतलब उसमें कुछ रेफरेंस मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का। मैं बायो के लिए बता रहा हूँ, और स्पेशली बायो। ठीक है, सो ट्रूमन्स इज अ वेरी बेस्ट, बहुत डिटेल है, हम भी ट्रूमन से ही पढ़ते हैं जनरली, हम जो पढ़ाते हैं आप लोगों को वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद हमें करना क्या है इन होल ईयर? सबसे पहले लेसन पढ़ो फ्रॉम दी एनसीईआरटी। नेक्स्ट ट्रूमन्स यू कैन यूज आवर लेक्चर्स। ओके, इसको आप रिपीटेटिवली सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, हम लिंक शेयर कर देंगे। वैसे अभी लिंक वगैरह बनना शुरू है फिलहाल, वो बन जाएगा 4-5 दिन के अंदर, मैं बता दूंगा वैसे जब बनेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज क्लासेस पूरे के पूरे अटेंड करना है। क्लासेस को ये मिस मत करना कभी भी। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्लास अगर आप एक क्लास अटेंड नहीं करोगे, बीच वाला छोड़ दोगे, उसके में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा सर कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ पे रह गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान में रखना, क्या भूल गया मैं, हाँ, सबसे बेस्ट बात है, जितना नीट क्रैक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हो सके उतना, जितना हो सके उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखते हो, इजी नीट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे वी हैव अ 360 मार्क पेपर फॉर बायोलॉजी। ठीक है, 360 मार्क का पेपर हमारे बायोलॉजी के लिए होता है, तो हमारा टारगेट अप टू 10 मार्क हम फॉर गॉड छोड़ देंगे। ठीक है, भगवान के लिए छोड़ देते हैं 10 मार्क, तो 350 अगर टारगेट आपका रहता है, और उस हिसाब से इफ यू प्लान फॉर द 350, देन आपको मिल सकता है 300 टू 320 के बीच में। उसके लिए पढ़ना भी उसी तरीके से पढ़ेगा हम। समझ में आ गई कि नहीं? एंड और एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक पेज ले ही लेता हूँ। ठीक है, जो कट ऑफ रहता है फॉर दी जनरल कैटेगरी, कट ऑफ हमें लेना है 600 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर मार्क लेना है।
फॉर ओबीसी इनको भी 600 के आसपास लेना है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर और एक चीज ऐड करूंगा, इनको 500 to 600 चल जाएगा, बट अच्छा कॉलेज चाहिए तो 600 के ऊपर चाहिए, ठीक है। अच्छा कॉलेज इन द सेंस गवर्नमेंट कॉलेज। इन केस ऑफ एससी, एससी हैव लॉट ऑफ कंपटीशन, दैट्स व्हाई मैं 500 ही रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर। इन केस ऑफ एसटी 450 के आसपास भी चल जाएगा, बट हम इसको और थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, 500 to 450 के बीच में, ठीक है। तो इतना मार्क चाहिए हमें फॉर क्लियरिंग द नीट एग्जामिनेशन। क्लियरिंग इन द सेंस मेरिट में आने के लिए और मेरिट लिस्ट के लिए। क्लियर तो हम 350 पे भी हो जाते हैं, सो उसको कोई मतलब ये नहीं रहेगा। फॉर यूर एडमिशन इन एमबीबीएस हमें इतना मार्क चाहिए, फॉर जनरल कैटेगरी 600 अबव, फॉर ओबीसी 500 to 600 और 600 अबव, इन केस ऑफ एससी 500 अबव, इन केस ऑफ एसटी 500 to 450, ठीक है। इसके ऊपर लिया तो अच्छी बात है, नो इशू, ठीक, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस, दिस इज योर प्लान, एंड वी हैव, हमारे पास कितना टाइम है, लगभग मई में, नेक्स्ट मई में एग्जाम रहेगा। इन 2021 यू हैव अ 12 मंथ, ठीक है, लगभग 12 मंथ हमारे पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आउट ऑफ 720 बोल दिया ना, 720 का पेपर होता है ना नीट का पूरा, आउट ऑफ इतना मार्क लेना है, ठीक है। तो 12 मंथ का प्लान कीजिए प्रॉपरली, उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। और टाइम पास जो है वो कम कीजिए, ठीक है, टाइम पास को इग्नोर कीजिए, थोड़ा सोशल नेटवर्किंग को इग्नोर कीजिए, सोशल क्या बोलते हैं उसे, प्लेटफॉर्म या बीज वगैरह, इसको थोड़ा निग्लेक्ट कीजिए, और मोर एंड मोर स्टडी कीजिए। स्टडी इन द सेंस कॉन्सेप्ट तो समझिए। सबसे बेस्ट बात जो है ना नीट की एक ही है, यहां पर रट्टा नहीं चलता। नीट डोंट वांट रट्टा, ठीक है, इट वांट कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। आइदर दिस कॉन्सेप्ट यू अंडरस्टूड इन यूर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे मैं, आई एम महाराष्ट्रियन, मैं मराठी हूं, तो मैं मराठी में अगर समझू कॉन्सेप्ट को, कोई टेंशन नहीं, मुझे लिखना थोड़ी है पेपर। आई डोंट वांट टू राइट इन द पेपर, मतलब हमें इंग्लिश में पेपर नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वी जस्ट क्लिक ऑन वन ऑप्शन, हमें एक ऑप्शन चूज करना है। सो प्लीज मेंटेन योर कॉन्सेप्ट इन योर लोकल लैंग्वेज, जैसे भी आपको सुटेबल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मेरा मानना यह है कि इन योर लोकल लैंग्वेज, इन योर होम लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट इजीली ध्यान में रहते हैं, बहुत दिनों तक ध्यान में रहते हैं। एंड अगर मराठी, हिंदी, ठीक है, लाइक कन्नड़ा, ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज में आप अपने कॉन्सेप्ट को रख सकते हो, नो इश्यू, कोई डाउट नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं व्हाई यू डोंट यूज इंग्लिश इन योर कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इन योर माइंड। कॉन्सेप्ट कहाँ पर रहता है? माइंड में रहता है हमारे, समझ में है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट की जरूरत है हमें, ठीक है। मतलब कुछ भी करके हमें, एक सिंपल सा एक मुहावरा है अपने हिंदी में, ठीक है, मतलब मुर्गा सफेद हो या काला हो, सॉरी मुर्गा नहीं, मुर्गी, ठीक है, मुर्गी सफेद हो या काली हो, हमें क्या है, अंडे से मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो कॉन्सेप्ट कैसे भी ध्यान में रहे, आइदर इन इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत, कौन से भी लैंग्वेज में, बट हमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर रहेगा वो हमें उसका इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पार्ट हम ले लेते हैं। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट और इंट्रोडक्शन, हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें। 1 मिनट।
सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन एंड टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट इन रिप्रोडक्शन, phases in life cycle, and embryogenesis. Embryogenesis means making of embryo. Embryo कैसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज asexual reproduction seen in member of kingdom Monera, Plantae, Animalia, all of these. I am launching the poll. Please answer the poll. Incorrect, Veronica. चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इनकरेक्ट अनन्या, हर्ष करेक्ट, सुजल इनकरेक्ट। ये बहुत लोगों का इनकरेक्ट आता है, वैसे टेंशन ना लो। धनमा इनकरेक्ट, आकाश इनकरेक्ट, साक्षी इनकरेक्ट, अनन्या करेक्ट, करेक्ट हर्ष, करेक्ट निश्चिता, करेक्ट वेरोनिका। ठीक है, ओनली 10 seconds are left guys, please answer fast. I am ending the poll now, and this is your result. Maximum people choose an option A. Obviously option A is the incorrect option. Then which option is the correct? So correct option is all of these. Why? Because you already know Monera have a asexual reproduction. ओके, इनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा कंटिन्यूसली, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, दैट इज अ बैक्टीरिया, ये तो पता ही है सबको। इन केस ऑफ प्लांटाई, प्लांटाई में भी लोअर प्लांट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। नेक्स्ट इज एनिमलिया। इन केस ऑफ एनिमलिया देयर हैव सम ऑर्गेनिज्म दैट इज अ स्टारफिश doing the process of regeneration. And that's why regeneration is an asexual process, and that's why sponges, and that's why all of this is the correct answer. ठीक है, चलिए coming to the next. Which of following is the main purpose of living in their life? ठीक है, ह्यूमन का क्या पर्पज है उसके लाइफ में। ह्यूमन इन द सेंस लिविंग का क्या पर्पज है उनके लाइफ में? टू कंज्यूम फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड कंटिन्यू लाइफ, फाइटिंग विद अदर। ओके, एंड आई एम लॉन्चिंग द पोल अगेन. Correct Sujal, correct Dhanamma. Incorrect Harsh. Correct Sakshi, correct Ananya. Okay, चलिए. Only 10 seconds are left, guys. Please answer fast. I'm ending the poll, and this is your result. Maximum people choose an option C. Obviously, option C is the correct option. ठीक है, अब देखते हैं इसको. So here, which of the following is the main purpose of living in their life? So produce offspring and continue life. It is a main function and main property of life. Consume food is not necessary. To produce energy is not necessary, because energy is useful to drive life. Okay.
एनर्जी तो लगेगी, नहीं तो वो लिविंग कैसा रहेगा। फाइटिंग विद अदर आल्सो नॉट नेसेसरी, मतलब ये ऐसा कोई होगा क्या जो फाइट करने के लिए पैदा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे इसमें। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन वैसे हमें पता ही है, फिर भी एक बार ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द ह्यूमन कपल, ठीक है, ये ह्यूमन कपल है हमारा, ठीक है, और ह्यूमन कपल को मेल फीमेल को एक पपी होता है, ऐसा नहीं होता है, इनको बेबी ही होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई is a process in which an organism produce young one similar to itself, ठीक है, not a same, similar to itself. The period from birth to natural death, it is known as lifespan, उसे हम जिंदगी कहते हैं, ठीक है। Based on the number of participant, reproduction is a two type. One is asexual. Why? Asexual have only one parent, एक ही parent इसमें रहेगा. And next is the sexual. In case of sexual, there have two parent. इसमें कितने parent रहते हैं? Two parent. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर दो चीजें दी गई है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो फटाफट डिफरेंस लिखते हैं हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल, that means only one parent involved in asexual reproduction. It is a biparental, biparental, that means there have two parents involved in it, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर सोमैटिक सेल इन्वॉल्व, सोमैटिक सेल इन्वॉल्व। देन व्हाट इज मीन बाय सोमैटिक सेल गाइस? सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट सुजल, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? सेल विथ डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइट हियर डिप्लॉइड, ठीक है। अब डिप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब क्या होगा? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो सेल के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, दैट इज द डिप्लॉइड क्रोमोसोम, एंड दैट डिप्लॉइड क्रोमोसोम कंटेन अ सोमैटिक सेल। बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होगा इनको केस ऑफ सेक्सुअल, इसमें कौन से सेल यूज में आएंगे? जर्म सेल्स। देन एग्जांपल ऑफ जर्म सेल आर स्पर्म सेल, मतलब एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। स्पर्म सेल, ओवा, एक सेल, ये जो है ये जर्म सेल है पूरे के पूरे, ठीक है। इट ऑल्सो हैप्लॉइड, ये कैसे है? हैप्लॉइड भी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हियर organism is a similar to their parent, ठीक है। so I am right here similar to parent, ठीक है, not completely similar, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर completely similar नहीं रहेगा। हाँ, clone is a asexual, clone produced by asexual reproduction. This process is the fast process, sexual reproduction is the slow process. So this is some of point. Other और भी बहुत सारे point है। For example, genetic recombination not happen in asexual reproduction, genetic recombination happen inside the sexual reproduction. तो ऐसे बहुत सारे point है, ठीक है। So this is a difference between, a broad difference between sexual and asexual reproduction. So this complete process, that is from birth the lifespan. Okay, इसे क्या कहते हैं हम? लाइफ स्पैन। And this is a different phases of life, that is a birth. After birth there have a juvenile or vegetative phase. This is a reproductive phase where organism is able to reproduce. Next is senescence, means in this phase it get old, death, that is organism get die. Okay, चलिए आगे बढ़ते। So this is a different lifespan chart. ये chart I will share the PPT
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, सॉरी रोज का और लाइफ स्पैन कितना रहेगा, 5 to 7 ईयर। राइस प्लांट का, बनियान ट्री, बनाना ट्री, और डॉग, क्रोकोडाइल, हॉर्स, टॉर्टाइस, क्रो, काउ, ठीक है, इनके सारे लोगों के लाइफ स्पैन यहाँ पे हमें मिलेंगे। और ये बहुत बड़ा चार्ट है हमारे पास, सिसिडा, सिसिडा इज वन ऑफ फ्लाई, सिसिडा नाम का एक फ्लाई रहता है। एनागैलिस इज डिवीड, हीट, रैट, रैबिट, मंकी, डॉग, कैट, व्हेल, हॉर्स, एलिफेंट, मैन, पैरोट, टॉर्टोइज, banyan tree, people tree have a lot of वी कैन से लाइफ स्पैन इसका बड़ा है, ठीक है, 2000 to 3000 ईयर। स्कोनिया दैट इज रेडवुड ट्री हैव 3000 to 4000 ईयर, इसका लाइफ स्पैन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे ओल्डेस्ट ट्री विच सिचुएटेड और फाउंड इन यूएसए, दैट इज लैरिया ट्रेडेंटाटा, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन है 11,700 ईयर, 11,700 ईयर। अगेन रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, द पेरेंटल काइंड, मतलब जो पेरेंट के जैसा दिखता है, ठीक है, लाइक पेरेंट लाइक किड्स, ठीक है, इस तरीके से। व्हाई वी वांट रिप्रोड्यूस, टू कंटिन्यू द रेस, रेस का मतलब होता है हमारा जो वंश है वो चलता रहे ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब ये एक मेन फीचर है लिविंग बीइंग का, ठीक है। सो दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन हैबिट और हैबिटाट एंड इंटरनल फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी का सिस्टम कैसा है उसके ऊपर, और वो कौन से जगह पर रह रहा है। व्हाट इज मीन बाय हैबिटाट, हैबिटाट इज द कंडीशन ऑफ सराउंडिंग, ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन हैव टू पार्ट, दैट इज एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तो हमें पता ही है चीजें। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी भी डिस्कशन किया है हमें, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, नो गैमेट फ्यूजन, नो मियोसिस हैपन, नो नीड टू सेक्स ऑर्गन, क्लोन ऑफस्प्रिंग। क्लोन ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जनरली क्लोन है ना आर्टिफिशियली डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। हाँ वो बताऊंगा मैं आकाश हम बताएंगे वो, मैंने बताया भी था शायद जब हम कैम्बियम वाला पार्ट ले रहे थे तब, ठीक है। क्लोन ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, क्लोन ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वन ऑफ पर्सन एंड दिस पर्सन वांट टू कॉपी देयर जेनेटिक कोड and develop new person again, okay, so this new person is a morphologically and genetically and genetically same with this first person, and this next person is the clone of first person, उसे कहा जाता है क्लोन। क्लोन का एग्जांपल है हमारे सामने इज द डॉली शिप, डॉली शिप इज द फर्स्ट क्लोन इन द यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स इन द सेंस ऑन प्लैनेट, हमारे अर्थ के ऊपर डॉली शिप जो है ना वो फर्स्ट क्लोन था, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से हमारे पास, द फेज आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज इज जुवेनाइल, सीनेसेंस फेज, एजिंग फेज, बोथ ए एंड सी। आई एम लॉन्चिंग द पोल, प्लीज आंसर इट। रिप्रोडक्टिव के बाद कौन सा फेज आता है, बस क्वेश्चन वही है हमारा। चलिए कौन सही आंसर दे रहा है मुझे, 20 seconds are left guys, please answer fast।
ओके ओके ठीक है, करेक्ट सुजल, करेक्ट गौरी, करेक्ट धनम्मा, करेक्ट साक्षी। ओके ठीक है, चलिए। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज दी बोथ बी एंड सी। ओके, एजिंग एंड सेनेशन phase come after the reproductive phase, juvenile phase come before the reproductive phase, ठीक है। That's why both B and C is the correct answer. This is for today. From next lecture onward, we going to discuss about type of asexual reproduction in detail. Okay, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दिया डी, बराबर है, ठीक है, नो इश्यू। सो प्लीज गिव मी आंसर इन फीडबैक। ओके, और उसके बाद यू कैन लीव द क्लास फॉर अ डे।